Assalamu alaikum and welcome to Learners Republic Policy Fellowship 2022. This year we are hosting 50 fellows and they are diverse cohort coming from 18 cities of Pakistan, and they are eager learners and they're willing to explore the policy world with specialized mentors just like one that we have today, Aftab Heather Saab. Thank you, sir, for coming to LRP. It's such a wonderful pleasure to have you. We're so excited about the topic you choose to give the insightful learning to all our fellows. Just a brief introduction about Sir. Sir is a Harvard graduate in public administration. He's working in the public sector for more than 21 years. He's a CEO of Pakistan Windows Single Company, if I'm not wrong. Single And window. Yeah, single window company. And without any other delay, let's explore what he's going to teach us about the digital transformation of cross-border trade. Welcome, sir. Thank you very much, Hira. बहुत शुक्रिया आपका. And it's actually an honor to be here because there are so many young faces, except for Naveed Saab, which I can see on my screen as well, and that puts me in a little bit of mind because it's easy to talk to you guys who are also young and upcoming, but it's very difficult to talk to a known expert like Naveed Saab, who's here and would be kind of auditing what I'm saying. But thank you very much. I'm not an academic, I'm not a teacher, so apologies in advance agar aapko lage ke I'm too much on the practical side and not too much on the academic side, because by training I used to be a bureaucrat and I still am working in the public sector. Along my career, I've had a little bit of transition, so I've moved more towards digitization of government sector. And that's how I've ended up as being the CEO of the Pakistan Single Window Company, which basically is a government sector entity that is in the trade tech sphere. तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया when you approached me, Hira, it was basically I wanted to talk about what we are doing, not just to showcase what this Pakistan Single Window is doing, because this session is not about Pakistan Single Window, but basically गवर्नेंस रिफॉर्म्स में डिजिटाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आ सकता है और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर. I'm going to share my screen. There's a presentation. Hira, can you please give me the rights to do that? So please check. हाँ जी, अब आ गया. So, okay, I hope this is visible to everyone. जी ठीक है. So basically today I'm going to talk about the public sector reform using digital transformation or technology as a tool, but I'm going to specifically focus on the cross-border trade. And I will use Pakistan Single Window as a case study. I will not talk a lot about what Pakistan Single Window is doing, but how Single Window would be triggering reforms into the public sector. और जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, हम सब लोगों को इस बात का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट इन आवर पर्सनल लाइव्स, इन आवर एकेडमिक लाइव्स, कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है. देयर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट थिंग्स प्रोसेस्ड. आपको किसी किस्म की परमिशन चाहिए, आपको किसी किस्म का फॉर्म चाहिए, इवन इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन लाइक डिपॉजिटिंग फी फॉर समथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन इट. वी सी दैट एवरी डे हैपनिंग, whether you are a college student or you have something to do with any of the government sector, government departments. आप लोगों ने ज़मीन ट्रांसफर करनी है, आप लोगों ने किसी परमिट के लिए अप्लाई करना है, अपने CNIC लेना है, there's a lot of paperwork involved in it. And usually bureaucracy is like that in every country. बहुत से मुल्कों में bureaucracy evolve हुई है with time. They've adapted to new processes, new procedures, new technologies. But behind all of that has actually come a very profound change, and that change has been to not serve as colonial masters or as masters even, but as true public servants. Bureaucracy is there, government sector is there to basically provide services to the citizenry. और यही अगर आपका मकसद हो और आप अपने सारे प्रोसेसेस को लोगों को जहन में रखते हुए, एक आम सिटीजन को जहन में रखते हुए डिज़ाइन करें, तो वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं कंपेयर टू व्हेन यू थिंक अबाउट कंट्रोलिंग थिंग्स, व्हेन यू थिंक अबाउट रेगुलेटिंग थिंग्स. द प्रिज्म इज टोटली डिफरेंट. So usually, I mean, that is the background.
I usually start my presentations with this quote by one of the US presidents. Change is the law of life, and those who look only to the past are certain to miss the future. And basically होता ये है कि मैं जब भी जाता हूँ किसी भी जगह पे बात करने के लिए, normally my audience is from the public sector, and usually the biggest challenge that we have is, make them accept change. And when we're talking about reform, it's reform. We are basically forming something from the start. And that obviously means changes, accepting changes, managing changes, implementing those changes. आज की जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे हिसाब से ये चीजें थी जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं. इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस. लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एकेडमिक, आई एम बेसिकली अ प्रैक्टिशनर. Basically, I've worked in customs and trade for the last 2 decades. We would be having collective learning. I hope that, I will be getting something out of this session that I can apply in the work that I'm doing right now. We're talking a little bit about digital transformation as a tool for reform. किस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिजिटाइज करके या डिजिटलाइज करके, there's a slight difference between the two, और हम रिफॉर्म की तरफ जा सकते हैं. और फिर हम ट्रेड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मली लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता. ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तो कस्टम ड्यूटीज़ की बात आती है, लग्जरी गुड्स की बात आती है. आजकल ये ट्विटर पे भी डिबेट चल रही है, डॉग फूड पे ज़्यादा हो गया टैक्स, सोलर पैनल्स पे टैक्स ज़्यादा हो गया, कम हो गया, इस किस्म की बात चलती है. तो ज़्यादातर लोगों का जो इंटरेक्शन रहता है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के हवाले से कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर ही रहता है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ दैट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड. And during this session, we would be talking a little bit about those things. पाकिस्तान सिंगल विंडो को हम एज अ केस स्टडी लेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है टुवर्ड्स ट्रिगरिंग सर्टेन रिफॉर्म्स इन दी ट्रेड सेक्टर. और फिर हमारे लेसन्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, टेक अवेज क्या हैं, किस तरीके से हम इस एक्सपीरियंस को और इस एक्सपेरिमेंट को और जगहों पर रेप्लिकेट कर सकते हैं. So it's not going to be a very long presentation. Basically मैंने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है. मैंने Q&A आखिर में रखा है, but please feel free to interject at any point in time. आपको लगता है कोई सवाल है, मैं अगर बहुत तेज बोल रहा हूँ और बात समझ नहीं आ रही तो also let me know about that as well, and I would be happy to respond to questions during the session. When you talk about regulatory reform, these are few of the methods जो कि दुनिया जहान में यूज होते हैं कि आपने रेगुलेटरी रिफॉर्म करनी किस तरह है. अच्छा, रेगुलेटरी रिफॉर्म कहते किसको हैं? रेगुलेटरी रिफॉर्म बेसिकली इज अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर लॉज हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है. पाकिस्तान के अंदर उसको SRO के नाम से भी पुकारा जाता है. ये सारी वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं किसी भी सर्टेन सेक्टर को. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करनी है उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होगा. आपने सिटीजन्स का डेटाबेस किस तरह मेंटेन करना है उसके लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स होगा. अगर आप IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, IT सेक्टर को कैसे रेगुलेट करना है, फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे करना है, इसको सबको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है. एट द बेस ऑफ एवरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज अ लॉ और अ स्टैट्यूट व्हिच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और फिर उसके ऊपर नए नए प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स बनते जाते हैं. दिस हैपेंस इन एवरी कंट्री. जब भी कुछ साल गुजरते हैं तो आपको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से अपने प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को और इवन लॉज को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है. पिछले कई सालों से, जब से 1970s में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई और दुनिया आपस में ज़्यादा इंटीग्रेट होना शुरू हुई इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, there has also been quite a lot of emphasis on reducing the time and cost of doing business, whether that business is for domestic commerce or it's for international trade. और उसके बाद फिर ये बात भी स्टार्ट हुई कि आप अपना जो ट्रेड से रिलेटेड जितना सेक्टर है उसको रिफॉर्म करें और लोगों का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम करें. बट द सेम प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर कि आपने लोगों पे बर्डन कम करना है रेगुलेशन का. You don't want to make them comply to laws and regulations जिस पे compliance cost इतनी high हो कि लोग उसको avoid करना शुरू कर दें. So this is where regulatory reform comes in. ये कुछ processes हैं जो कि use होते हैं for regulatory reform. जब हम reform की बात करते हैं, आपने सुना होगा लोग कहते हैं, आपको कई दफ़ा इस तरह के political बयान भी मिलते हैं कि हम restructuring कर रहे हैं, हम re-engineering कर रहे हैं. But there are so many different ways of doing it. आजकल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप लोगों का कोई इंटरेक्शन हो या अगर आप उसको फॉलो करते हो तो वहाँ पे गिलेटिन की इस्तेलाह यूज की जाती है.
बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि आप बहुत सारे प्रोसेसेस को काउंट करते हैं कि किसी भी एक गवर्नमेंट एजेंसी के कितने प्रोसेसेस हैं, और फिर आप उसको काटना शुरू कर देते हैं कि कौन से प्रोसेस रिडंडेंट हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको काट दें। बुलडोजर एक मेथडोलॉजी है जिसमें आप लिटरली बुलडोज करते हैं कि आप खुद जाके बताते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज को कि यू डोंट नीड दीज प्रोसेसेस। I'm not going to go into details of each and every method because that's not the objective of this session. Be happy to answer any questions related to them, but basically we are going to focus a little bit more on digital transformation, which is mentioned at the very last of this list. So what is digital transformation? Digital transformation basically adoption है digital technology की to transform service of businesses through replacing non-digital or manual processes with digital processes. या नई टेक्नोलॉजी को आप रिप्लेस करें, पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा के नई टेक्नोलॉजी को उसके ऊपर ले आइए। ये जो पिरामिड है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के दरमियान एक छोटा सा एक फर्क है, और वो ये है, नॉर्मली पीपल यूज दैट इंटरचेंजेबली बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दैट। डिजिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे इफ वी आस्क यू टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट एंड अपलोड इन द सिस्टम, दैट मीन्स कि आपने उसकी डिजिटाइजेशन की है। बट जब आप उसी स्कैन डॉक्यूमेंट्स के डेटा एलिमेंट्स को यूज करके और उसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स रन करना शुरू कर देते हैं या बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल लगा के डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। इस वक्त जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड, वहाँ पे डिजिटाइजेशन जो फर्स्ट फेज है उसकी वेव चल रही है, यानी आप ज़्यादातर मैनुअल प्रोसेसेस को रिप्लेस कर रहे हैं विद अ डिजिटल प्रोसेस या अ डिजिटल फॉर्मेट। जो डिजिटलाइजेशन है ये नेक्स्ट स्टेज है जिसमें पाकिस्तान में कुछ इदारे अब इस जगह पे पहुंचे हैं, बट जनरली एज अ गवर्नमेंट सेक्टर वी आर स्टिल ऑन स्टेज 1, and then comes the last stage when you actually use that digitalized processes to completely transform the organization. And there are a couple of organizations that I'm going to quote here जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये अटेम्प्ट की है। वेरी क्विकली, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? हम जब इतने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म के, तो हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? बेसिकली बिकॉज इट इम्प्रूव्स सर्विस डिलीवरी। आपको इन्फॉर्मेशन, टाइम, प्रोसेस सारों में बेनिफिट्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है, यू गूगल पे जाएं, गूगल पे आप कुछ भी टाइप कर लें, यू गेट द इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन। आपका टाइम बचता है, आपको कंप्लाइंस के अंदर प्रोसेसेस इतने लंबे नहीं पड़ते। इस वजह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा टूल है आपके कॉस्ट को कम करने के लिए। गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो जाती है। जहाँ पे पहले 4 बंदे बैठ के मुख्तलिफ फॉर्म्स देख रहे थे, अब एक सिस्टम को मॉनिटर करके और कंप्लाइंस को इंश्योर कर रहा होता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इस पर आई विल टॉक अ लिटिल बिट लेटर व्हेन आई टॉक अबाउट द सिंगल विंडो एंड पाकिस्तान कस्टम्स, बट generally when you implement a system you are creating a very transparent system, and then it's easy to actually make people accountable. डेटा की विजिबिलिटी है, आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि सिटीजन एंगेजमेंट एंड फीडबैक बहुत होता है। आप नवीद साहब यहाँ पे बैठे हैं, ही इज अ ग्रेट चैंपियन ऑफ इन्वॉल्विंग सिटीजन इनटू डिसीजन मेकिंग, जो कि जिसमें कि उनकी ज़रूरत पड़ती है। शहर कैसे रन करना है, ट्रैफिक कैसे मैनेज करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर आप लोगों को सिटीजन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए। When you have a digital system in place, तो आपके लिए ये engagement and feedback लेना आसान है। At this point in time, I don't know if you have the experience, but probably it is easier to access the Prime Minister portal with a complaint. आपकी गली से trash removal नहीं हुआ, you just lodge a complaint and you would see that CDA would send somebody to remove that trash. आपको passport office में delay हो गया, you lodge a complaint in the Prime Minister's portal and you get that things done. But the real value is also in the feedback. Based on that feedback, the government sector or anyone, any entity which has implemented that system would start reforming the system और अपने processes को improve करना शुरू करेंगे, अपनी service delivery को improve करना शुरू करेंगे। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज की, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए किस्म की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो यू बेसिकली नीड टू अलाइन योरसेल्फ विद देम। If the entire world is moving towards blockchain, you can't still be using 386, 486 computers. If everyone is using, I don't know, PS5 or I don't know, कौन से Xboxes चल रही हैं, but I'll have to check my son of which version he's using. But आप पुराने version पे जाके ना games नहीं खेल सकते, you just don't enjoy it. So it's very important to be aligned with new technologies and best practices.
And of course, for the last 2 years, COVID-19 pandemic is also something that has accelerated digital transformation, as the need to introduce social distancing, isolation की ज़रूरियात बढ़ी, तो फिर उस वक्त एक कामयाब बिजनेस मॉडल भी बनना शुरू हुआ कि आप लोगों को सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करें ताकि उनका एक्सपोजर कम हो जाए. Very quickly, 2 examples of Pakistan's public sector success stories में एक नादरा है. अभी आप लोगों का जनरली मैं जो एज ग्रुप देख रहा हूँ, based on the visuals, most of you would not have had the experience of going through the old processes for applying a national ID card या passport. जो लोग थोड़े से ज्यादा हैं या मेरी एज ग्रुप में कहीं अगर गलती से कोई आ गया है तो वो प्रॉब्ली रिकॉल करेगा कि यू हैड टू एक्चुअली स्टैंड इन क्यूज टू गेट योर पासपोर्ट. बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होती थी, बहुत सारे स्टैम्प्स होते थे, अटेस्टेशन होती थी, तब जाके आपको एक पेपर बेस्ड पासपोर्ट मिलता था जिसपे आपका नाम भी कभी भी गलत लिखा होता था. नादरा तो पासपोर्ट बिजनेस में बाद में आया, बट बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने सिटीजन डेटाबेस क्रिएट करना शुरू किया. बिफोर नादरा केम इन, सिर्फ एडल्ट्स की रजिस्ट्रेशन होती थी, वो भी वॉलंटरी बेसिस पे, जिसको जरूरत है वो आईडी कार्ड बनाएगा, यूनिवर्सल नहीं होती थी रजिस्ट्रेशन. मैनुअल थंबप्रिंट्स, मैनुअल प्रोसेसिंग, फेक आईडी कार्ड्स का मसला था, अभी भी कुछ हद तक है. विमेन पार्टिसिपेशन नहीं थी, आपकी सारी स्टैटिस्टिक्स ही स्क्यूड थी, आपको पता नहीं चल रहा था कि आपकी पॉपुलेशन में क्या नंबर्स आ रहे हैं अनलेस कि आप स्पेसिफिक सर्विस कर रहे हो. स्टैटिस्टिकल डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट करता था. जब नादा ने 2000s में नादा अथॉरिटी बनी और ये सारा प्रोसेस रिफॉर्म होना शुरू हुआ, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव नाउ बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस. जुवेनाइल कार्ड्स बनते हैं, सीएनआईसीज बनती हैं, स्मार्ट कार्ड्स बनते हैं, एंड दे हैव बीन एक्सटेंडिंग द सर्विस टू अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ. सो एफबीआर इज इंटीग्रेटेड विद देम, एक्साइज डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन, पासपोर्ट है. इवन हमारी जो कंपनी है पाकिस्तान सिंगल विंडो, दैट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद नादरा टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पीपल हु वांट टू कंडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स. Other example, Pakistan Customs, my parent department. This is Pakistan Customs in early 2000s. You can see almost a mob of people who are standing outside a counter trying to file declarations जो उनकी import export का सामान आया हुआ है. ये तस्वीर जो है ये हमारे कस्टम हाउस के इंटरनल ऑफिस की है. इसमें जो आपको साहब नजर आ रहे हैं डेस्क के पीछे बैठ के बेसिकली ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं. इनके सामने बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट्स खड़े हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स लेके फिर कोर्ट पे जाते हैं. और ये कस्टम हाउस कराची की कुछ तस्वीरें हैं उस ज़माने की, और आप इसमें सिर्फ पेपर को देख सकते हैं कि कितना एक अंबार जमा हुआ है इन पेपर्स का. बट जब कस्टम्स ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की, सो दिस इज हाउ द एनवायरनमेंट हैज स्टार्टेड चेंजिंग. आप देख सकते हैं साफ सुथरे दफ्तर, लोगों का इंटरेक्शन कम हो गया क्योंकि लोगों को ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिल रही हैं. दे डोंट नीड टू कम एंड विजिट द ऑफिसेज. और वो जो आपने पेपर कम बार देखा उसकी जगह आपके पास सर्वर्स आ गए, सर्वर रूम्स आ गए. एंड दिस इज हाउ कस्टम्स हैज बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म इट्स बिजनेस. कुछ की पॉइंट्स जो कस्टम्स में हुए कि वेसल क्लियरेंस, यानी जब कोई जहाज कंटेनर्स का लेके आता है, पहले उसको क्लियरेंस के लिए 26 स्टेप्स चाहिए होते थे मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जिसमें कराची पोर्ट ट्रस्ट होता था, इमिग्रेशन, हेल्थ, कस्टम, सारे वो सारा खत्म होके एक स्टेप पे आ गया. जो गुड्स डिक्लेरेशन वो जमा कराते थे जिसकी बेसिस पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैलकुलेट होती हैं और एक परमिशन मिलती है कि आप अपना सामान पोर्ट से ले जाएं और मार्केट कर लें. 34 सिग्नेचर, 62 वेरिफिकेशन, सारा खत्म हो गया. प्रोसेसिंग टाइम 4 दिन से कम होके घंटों पे आ गया. ड्वेल टाइम हम कहते हैं जब एक कंसाइनमेंट पोर्ट पे टाइम गुजारती है. बंदे ने सामान इंपोर्ट किया, पहले वो 11-11 दिन कंसाइनमेंट पोर्ट के ऊपर पड़ी रहती थी और उस पर ट्रेडर्स को डैमेजेस पे करने पड़ते थे, पोर्ट के चार्जेस पे करने पड़ते थे. बाय द टाइम वो मार्केट में आता था या तो माल उसका खराबी की तरफ जा रहा होता था या वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता था कि एक्सपेंसिव लोगों को मिलता था. सारा कम होकर 4 दिन पे आ गया. सो देयर इज लॉट ऑफ गुड दैट हैपेंड आफ्टर दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कस्टम्स टुक प्लेस. ई पेमेंट्स आ गई, वर्क फ्लो सारे इंटीग्रेटेड हो गए. Again, I'm not going to go into a lot of detail on that, but these are 2 examples of how public sector governance has improved by introduction of technology. अब ट्रेड पे बात करते हैं. ट्रेड पे टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत होगी? मतलब ज्यादातर लोग तो यही सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप क्रेन्स ले आएं, ठीक है, आप कुछ सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर लें, आप पेमेंट से डिजिटल कर सकें. बट एक्चुअली, और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है इसका और ट्रेड का जो नेक्सस है ये बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट है. एक्चुअली दिस इज नॉट सो. टेक्नोलॉजी हैज बीन लिंक्ड टू ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स. इफ यू थिंक अबाउट the first letter of credit that was opened, that goes back to actual ancient Greece times. और टैरिफ्स जब पब्लिश होना शुरू हुए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा,
इसमें पमायरा जो कि एक सीरियन सिटी है, वहाँ से एक टैबलेट मिली है जिसमें एक पुराने रोमन एम्परर ने ये चीज़ें पब्लिश की हुई थी. पेपर इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी. और जब ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो उसका साथ आपकी ट्रेड भी इफेक्ट होना शुरू हुई. व्हेन यू स्टार्टेड कमिंग अप विद डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड फ्लोज क्रिएट होना शुरू हुए. दिस इज हाउ ट्रेड स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. 18-19 सेंचुरी में वेस्ट से ईस्ट की तरफ तिजारत का रुख हुआ. उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे साइंटिफिक एडवांसमेंट ज़्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई, और इन सब का असर आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी पड़ा. दिस इज how you started evolving customs administrations, finance, commerce, ट्रेड को रेगुलेट कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है ये सारी आना शुरू हुई हैं. तो ट्रेड का और टेक्नोलॉजी का जो आपस में नेक्सस है, दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एज अ कस्टम्स ऑफिसर, तो वी वुड आल्सो टोल्ड कि फ्रॉम अमंग्स ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारा वो डिपार्टमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ, क्योंकि जो ट्रेड है का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है जब भी कोई इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप होती है, कहीं पे वॉर हो रही है. मिसाल के तौर पे कोविड-19 दौरान आपने सुना होगा कि चिप्स की शॉर्टेज हो गई, जो कंप्यूटर चिप्स लगती हैं, गाड़ियों की शॉर्टेज होना शुरू हो गई. सो यू नो दैट इज वन यूज केस के जहाँ पे ट्रेड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आया बिकॉज देयर वाज अ डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन. सो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लोजली लिंक्ड टुगेदर. The only difference is that technology affects trade flows faster than policies can adapt. आप टेक्नोलॉजी आती है, 3D प्रिंटर्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट में ई कॉमर्स आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई. आपकी पॉलिसीज वैसे बनी हुई नहीं है जो उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करे, लेकिन ट्रेड का फ्लो उसके अंदर स्टार्ट हो गया. और ट्रेड टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ी है. 1970s के अंदर कंटेनर्स सॉर्ट ऑफ इन्वेंट हुए और शिपिंग में कंटेनर्स का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ. इससे पहले होता ये था कि अनपैकेज गुड्स जाते थे मुख्तलिफ मुल्कों में, चूँकि चीज़ें पेरिशेबल होती थी या क्वालिटी डिग्रेड होती थी, ट्रेड इतनी ज़्यादा थी नहीं. जब कंटेनराइजेशन हुई तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी ज़्यादा होनी शुरू हुई, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ट्रेड पे नहीं रहा, इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट भी आया है. फॉर द लास्ट 5-6 years you have seen this rise of populist politics in Europe. Even President Trump का आना अमेरिका में was partly reaction to this globalization, जो कि ट्रेड की वजह से आ रही थी, कि जहाँ पे एम्फेसिस ये था कि आप अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट कर दें, गुड्स और पीपल का फ्लो आसान कर दें. उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज मार्जिनलाइज होना शुरू हो गई और उसका इम्पैक्ट आपका पॉलिटिक्स एंड सोशल मोबिलिटी पे भी आया. So this slide is one of my favorite. It's called evolution through revolution, evolution of the trade. और हम जब ट्रेड पॉलिसीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात करते हैं, तो वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दोज ऑफ यू हु आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री और इंडस्ट्रियल पॉलिसी would be very much aware of what industrial policies are, what industrial revolutions are. But this is the time when actually, the balance of power started shifting from east towards west. Kyunki west started becoming mechanized, they had more resources, they had started getting more money, more influence, they could raise more armies, they could go into far-flung areas based on the technology that they had developed and, sort of conquer and colonize them. This is what happened to the subcontinent, this is what happened to Africa. The first industrial revolution happened somewhere around 1760s. यहाँ पे मैकेनाइजेशन हुई, वाटर पावर, स्टीम पावर को उस वक्त डिस्कवर किया गया. सेकेंड रेवोल्यूशन जो है वो मैस प्रोडक्शन, असेंबली लाइन और इलेक्ट्रिसिटी की है, 1870s में आई है और ये चली है 1913-1914 तक. ये वो टाइम है जब कन्वेयर बेल्ट इजाद हुई, जब मैस प्रोडक्शन शुरू हुई, गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है मैस प्रोडक्शन लेवल पे आना शुरू हुई. थर्ड रेवोल्यूशन जो है वो 1970s का है, जिसमें कंप्यूटराइजेशन एंड ऑटोमेशन स्टार्ट हुई है. और ये जो टाइम है हमारा जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं 2021 में, वी आर इन द मिडिल ऑफ द फोर्थ रेवोल्यूशन, जहाँ पे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है, साइबर सिस्टम्स आए हैं, फिजिकल सिस्टम्स आए हैं. अब इसका इम्प्लीकेशन हम ये देख लेंगे, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड का इम्प्लीकेशन है क्या. आई मीन व्हाई डू वी वांट टू टेक इंटरेस्ट इन ट्रेड. So this is a infographic that I have taken from the World Trade Organization website. 2020 में ट्रेड इन गुड्स एंड मर्चेंडाइज जो थी वो $22 ट्रिलियन की रिकॉर्ड हुई, और ये थी एक 12% डिक्लाइन कंपेयर टू 2019, जबकि जो इंपोर्ट का वॉल्यूम था, इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम था, वो इससे भी ज़्यादा हाई था. So that's a huge amount of goods that are flowing across international borders.
जिसमें बहुत सारे मुल्कों की GDPs का बहुत बड़ा परसेंटेज इंटरनेशनल ट्रेड में बनता है। इस इंटरनेशनल ट्रेड में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो 71% थे, या 12.1 ट्रिलियन डॉलर्स के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सचेंज हुए। सर्विसेज की तरफ आए तो बहुत बड़ा जो सर्विस सेक्टर था वो ट्रेवल का था, इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, जिसने 549 बिलियन रिकॉर्ड किया 2020 में, कंपेयर टू 1468 बिलियन, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स एक साल पहले। ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट इसमें रिकॉर्ड हुआ है, बिकॉज आई एम शेयरिंग द लेटेस्ट फिगर्स। बट एट द सेम टाइम कंप्यूटर साइंसेज में या कंप्यूटर सर्विसेज में जो ग्रोथ हुई थी वो तकरीबन 8% रिकॉर्ड की गई। ये आपको ग्लोबल लेवल की मैं फिगर्स बता रहा हूँ। अभी हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में है, इसका इम्पैक्ट क्या आना है? इसमें इनफैक्ट इम्पैक्ट जो आना है वो स्ट्रक्चर एंड कन्फिगरेशन ऑफ ट्रेड में आना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की मैंने आपको नंबर्स दिखाए कि 12.1 ट्रिलियन डॉलर्स की हुई हैं, और उसके अंदर ट्रेड फ्लोज का जो पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस एंटिसिपेट की जा रही हैं। ऑलरेडी चाइना, ब्राजील, इंडिया जैसे मुल्क जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग। तो ग्लोबल ट्रेड में नंबर्स का शिफ्ट आएगा, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ कम होगा, रीजनल ट्रेड की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन मुल्कों ने पहले डिजिटल टेक्नोलॉजीज का अडॉप्ट किया होगा उनको उसके अंदर एडवांटेज होनी है। फिर डिजिटल स्फेयर के अंदर कंपटीशन आने का काफ़ी ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि जब आप टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करते हैं तो आप जो नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एंडोमेंट हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स काउंट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, बेसिकली उन पे आपकी ना डिपेंडेंसी कम हो जाती है। बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजीज यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, मैन पावर, एंड दैट गिव्स इमेंस अपॉर्चुनिटी टू स्मॉलर कंट्रीज, smaller businesses to become part of the global supply chain, be a major player in the global trade, because you are not dependent on capital or land for that matter. Capital to some extent, yes, because some of these technologies are still expensive, but you know it's not the same thing as setting up a plant, getting the raw material, manufacturing them, arranging the logistics and transportation. It just becomes a very different game altogether. Then new regulations would also come into play here to deal with emerging technologies and blurring national border. There's already a discussion on where the goods should be taxed. अगर आप एक चीज बना रहे हैं मेड इन पाकिस्तान लेबल से, लेकिन उसमें से कुछ चीजें इंडिया से आ रही हैं, कुछ चीजें साउथ ईस्ट एशिया से आ रही हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, रूल्स ऑफ ऑरिजिन कैसे होंगे? अगर आप 3D टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आपने US में बैठ के प्रिंट ले लिया है किसी चाइनीज प्रोडक्ट का, उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके होंगे? इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना है। लेबर मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जब चीजें डिजिटाइज होंगी तो ऑब्वियसली वेज मार्केट पे, लेबर मार्केट पे असर पड़ेगा, और जो मुल्क सिर्फ लेबर की बेस पे कम्पीट करते हैं उनको भी प्रॉब्लम आना शुरू होगा, बेसिकली बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अनस्किल्ड लेबर जिसका कोई यूज नहीं होना। What happens in numbers? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अब नंबर्स की हम बात करते हैं। अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पे इसी तरह इम्प्लीमेंट होती है, सो 16 से 28% के दरमियान रिडक्शन आना है कस्टम्स एंड उसके प्रोसेसिंग टाइम्स पे ग्लोबल लेवल पे। 1% रिडक्शन आएगा ट्रेड कॉस्ट पे, जो कि 0.4% इंक्रीज करेगा ट्रेड को। ओवरऑल ट्रेड में जो बूस्ट है वो 6 से 11% का है। इस स्लाइड के लेफ्ट साइड पे आप जो ब्लू बॉक्सेस देख रहे हैं ये डिफरेंट ट्रेड टेक्नोलॉजीज के हवाले से बात कर रही हैं कि अगर एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वेरी क्विकली, फर्स्ट बॉक्स इज अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई कॉमर्स, ब्लॉकचेन। अगर ये सारे इंप्लीमेंट होते हैं, ग्लोबल लेवल पे इंप्लीमेंट होते हैं और जो कि हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाय 2030 एस्टिमेटेड किया है कि आपकी ट्रेड पे 4.7 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीज आएगा। और ऑब्वियसली इसमें वो कंट्रीज बेनिफिट में रहेंगे जिन्होंने के अर्ली ऑन इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया होगा। प्रोडक्शन प्रोसेसेस चेंज होंगे। ऑलरेडी वी बीन हियरिंग अबाउट हाउ मेनी कंट्रीज आर एक्चुअली बैनिंग मोटर व्हीकल्स जो कि पेट्रोल पे या डीजल पे चलती हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। तो इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क ने इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी डेवलप की है वही मार्केट में इन होगा, और बहुत सारे मुल्क जो कि अभी तक इंटरनल कंबस्टन इंजन्स बना रहे हैं और उस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दे वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। प्रोडक्शन वुड मूव क्लोजर टू कंज्यूमर्स बिकॉज अगेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेंगे। और फिर जब नई चीज़ें आएंगी तो फिर उसके अंदर भी कॉम्पोजिशन और ट्रेडेबिलिटी ऑफ गुड्स का इम्पैक्ट आएगा। तो इस वजह से डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि इसमें ट्रेड के फ्लोज में असर पड़ सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिग नंबर्स हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिग मनी हियर। पाकिस्तान की जो पोजीशन है ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज में, अगेन दिस स्लाइड इज फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
हमारा कमर्शियल सर्विसेज में 0.09% शेयर है। $4.3 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है 2020 में। ड्यूरिंग द पेंडेमिक पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ हुई। कंप्यूटर एक्सपोर्ट सर्विसेज में वी रैंक्ड 7 इन ऑन अ ग्लोबल लेवल। 38% हमारा इंक्रीज था, विच शोज दैट वी आर अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ IT पोटेंशियल। बट ओवरऑल जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसमें पाकिस्तान का रैंक को इतना अच्छा नहीं है। एक्सपोर्ट्स में हम 65 नंबर पे हैं, इंपोर्ट्स में हम लोग 50वें नंबर पे हैं। A country of this size, endowed with so many different natural resources, with huge population, this does not seem to be a very promising figure. हमारा दुनिया की इंपोर्ट में जो शेयर है वो हार्डली 0.26% बन रहा है, एक्सपोर्ट्स में 0.12 बन रहा है। सो ट्रेड टेक है क्या, और ट्रेड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? पहले तो वेरी क्विकली समझने की जरूरत यह है कि जो ट्रेड पॉलिसी बनती है, ट्रेड पॉलिसी का मकसद क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी का मकसद ये होता है कि आप ट्रेड को एफिशिएंट करें। गुड्स क्विकली शुड मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स। जो कंज्यूमर है उसको जल्दी मिलनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके घर में एक हाइब्रिड हीटर जो है 1 वीक में लगना चाहिए, और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इंपोर्ट होकर आए, तो it shouldn't be delivered after the winters are over. Basically, they should be delivered well in time, and this is how companies normally get market share if they are more efficient. You're hearing about how Airlift and different startups have actually started reducing their delivery times. घंटों से मिनटों पे आ गए हैं, अब तो 10 मिनट के अंदर भी वो डिलीवरी की बात हो रही है। So trade should be efficient. ट्रेड शुड बी इंक्लूसिव, जिसका मतलब ये है कि ट्रेड किसी एक सेक्टर तक महदूद नहीं होनी चाहिए। जो आपकी सोशल और सोसाइटी के डिफरेंट लोग हैं उसके अंदर उन सबका हिस्सा होना चाहिए। इसके 2 एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक तो ये कि ट्रेड में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज भी हों, विमेन भी हों, माइनॉरिटीज भी हों, बट इसका मतलब ये भी है कि ट्रेड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों को मिल रहे हों। ट्रेड से किसी एक खास सेक्टर को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द केस इन पाकिस्तान, बट दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रेड पॉलिसी। और ट्रेड इक्विटेबल होनी चाहिए, यानी एक हर बंदे को अपने काम के हिसाब से, अपनी एफर्ट के हिसाब से उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सो ये बेसिकली ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रेड पॉलिसी के। हर मुल्क जो ट्रेड पॉलिसी बनाता है इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाता है। और ट्रेड टेक्नोलॉजी जो है उसका भी बेसिकली मकसद यही है कि इन 3 गोल्स को अचीव किया जाए। अब ट्रेड टेक्नोलॉजी है क्या? In the slide before you, you see a lot of blue boxes. These are the different kind of technologies that are being used in trade promotion. Internet of Things, IoT. There's blockchain, digital payments, digital services, robotics and automation है. 5G का system is also, a part of trade technology. E-commerce platforms हैं, artificial intelligence हैं. ये एक range है टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस की जो कि ट्रेड के अंदर इस्तेमाल होके ट्रेड को एफिशिएंट करने की कोशिश करती हैं। जब हम किसी मुल्क की भी डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर 2-3 फेजेस हैं। जिस तरह शुरू में मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें एक पिरामिड था, डिजिटलाइजेशन और फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। इसी तरह का एक ये फ्रेमवर्क है कि जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रेड के अंदर भी करते हैं, तो आप बेसिकली ये जर्नी फॉलो करते हैं। इन दी फर्स्ट लेवल यू गो फ्रॉम एन एनालॉग टू अ डिजिटल प्रोसेस, यानी आप अपने मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना शुरू करें। इसके अंदर आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों पे ERPs लगे होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सिस्टम्स लग रहे हैं, प्रोक्योरमेंट्स हैं और फाइनेंस जो है वो डिजिटाइज हो रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो डिजिटाइज हो रही है। पहले आप लोग कॉल करते थे हेल्प सेंटर पे, आपको कोई ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता था। अब कई जगहों पे बॉट्स आ गए हैं, कई जगहों पे मशीन लर्निंग के टूल्स हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में आप चले जाते हैं टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एंड कनेक्टिविटी, यानी डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। आप रोबोटिक्स लाना शुरू कर देते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारी बातें अभी आप लोगों को थोड़ी सी शायद मुश्किल लग रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इनको सरफेस पे टच कर रहा हूँ, बीइंग माइंडफुल ऑफ द टाइम दैट वी हैव। But when we go into the Q&A session, we can definitely explore them a little bit more in detail. But this is usually the framework. You move from an analog to digital process, and then you start rethinking your processes, your procedures, and then you start bringing improvement in the overall governance. Again, the question might arise कि हम ट्रेड टेक की तरफ जाएं ही क्यों? Things are moving fine, हम लोगों ने systems कुछ लगा लिए हैं, payments हो रही हैं,
बट ट्रेड टेक्नोलॉजी का आप इम्पैक्ट देखें, अदर देन नंबर्स जो बहुत से लोगों को वैसे ही नहीं अच्छे लगते, बट लुक एट द इम्पैक्ट दैट द करंट सिस्टम हैज राइट नाउ. इंटरनेशनल ट्रेड 28.4 बिलियन डॉक्यूमेंट्स पर एनम जनरेट करता है. 28.4 बिलियन डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करने में कितना टाइम लगता है, कितनी एफर्ट लगती है, फिर इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने में कितने लोग बैठे हुए हैं, फिर एक दफ़ा जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाएं, उनका स्टोरेज, उनकी आर्काइविंग, इट्स अ ह्यूज चैलेंज. इफ यू एवर गो टू कराची पोर्ट फॉर एग्जांपल, यू वुड फाइंड कि वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है. अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज अ वेल्थ ऑफ डेटा इन दोज डॉक्यूमेंट्स, बट नोबडी इज यूजिंग देम. हम उसकी बेसिस पे कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहे, कोई इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे. वी आर नॉट यूजिंग देम इन एनी वे. जस्ट अ टोटल वेस्ट. 30% ऑफ टोटल टाइम जो है वो स्पेंड होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने में. एक ट्रेड ट्रांजेक्शन उठाएंगे, 30% टाइम उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में लगेगा. $150 बिलियन का एस्टिमेट है जो मैनुअल मेथड्स की वजह से ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी लूज करती है. 45% माइक्रो एंड स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स. उसकी वजह यह है कि वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे रेगुलेटरी कॉस्ट के साथ या डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट के साथ, और जब वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट भी नहीं है. $1.85 बिलियन का ट्रेड फाइनेंस गैप है जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलता ही नहीं है, क्योंकि बैंक्स उनको लोन देने को तैयार नहीं है, फाइनेंस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनका पूरा टैक्स का ट्रेल नहीं है. So all of this, adds to the overall inefficiency of the trading system. Now look at what is happening on the other side. Netflix, 209 million subscribers, $24.9 billion in revenues. Imagine, I mean, this is probably greater than a lot of countries. And they're still growing. दुनिया भर में 9 मिलियन मोबाइल ऐप्स हैं. 200 बिलियन डाउनलोड्स अब तक हुए हुए हैं उसके अंदर. आप इस नंबर को देखें, सच स्टैगरिंग नंबर. व्हेन आई लुक एट इट फॉर द फर्स्ट टाइम और मैंने कैलकुलेट किया कि यार इस पे कितना सब्सक्रिप्शन लेते होंगे जो एप्स को डेवलप कर रहे हैं, क्या सर्विस फी लेते होंगे, तो नंबर वाज लाइक माइंड बॉगलिंग. दिस इज अ ह्यूज मार्केट दैट्स जस्ट आउट देयर एंड पीपल आर टैपिंग इनटू इट. क्वेश्चन इज, आर वी रेडी? आई डोंट नो. आई डोंट थिंक दैट वी आर रेडी टू दैट इफेक्ट. पॉलिसी कंसिडरेशन क्या होती है? जब हम ट्रेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या अडाप्ट करना है, हमने ये भी देखना है कि उसके साथ उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सब करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा है. कस्टम्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कंसाइनमेंट आ रही है, इंडिया से आ रही है, इसराइल से आ रही है, तो बैन है, नहीं आनी चाहिए. ऐसा बंदा लेकर आ रहा है जिसके बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, ऐसा बंदा है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसकी कंसाइनमेंट को चेक करना चाहिए. कंसाइनमेंट आप एक इंपोर्टर लेके आ रहा है, 5 दफ़ा खोली, 5 दफ़ा उसमें से कोई प्रॉब्लम निकल आई, तो उसका मतलब है 6ठी दफ़ा भी जरूर खोलनी पड़ेगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर माइट बी इंपोर्टर्स जिनका आप 10 दफ़ा कंटेनर खोलते हैं, उसमें से कोई नॉन कंप्लायंस नहीं निकलती, तो फिर 11वीं दफ़ा उसका कंटेनर खोलने की क्या जरूरत है? सो दिस इज वेयर AI कम्स इन. और आप वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स लगा के ये डिसीजन कंप्यूटर पे छोड़ देते हैं कि वो रिस्क असेसमेंट कर रहा हो. कस्टम्स की तो मैंने मिसाल दी क्योंकि कस्टम्स मेरी फील्ड है और सिंगल विंडो भी उस पर काम कर रहा है, बट AI का एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में, ट्रेड टेक्नोलॉजी में जगह जगह पे है. बैंक्स के अंदर लगता है, लॉजिस्टिक्स के अंदर लगता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर AI का इस्तेमाल होता है. बट फिर आपको इसके अंदर पॉलिसी कंसिडरेशन एज अ गवर्नमेंट सेक्टर ये करनी पड़ती है कि आप ये देख लें कि AI के जो टूल्स हैं वो आपके गिवन स्टैंडर्ड्स नेशनल लेवल पे अगर डिटरमिन्ड है उनके साथ कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या उसके अंदर कोई इंट्रूजन का रिस्क तो नहीं है, क्या उसको हैक तो नहीं किया जा सकता सिस्टम को, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज समथिंग व्हिच इज फास्ट वेरी रैपिडली कमिंग अप in commercial applications as well as in governance applications. Since we are talking about public sector, ये 3-4 यूज केसेस हैं. ट्रैक एंड ट्रेस, आपने कंसाइनमेंट डिस्पैच की, अब आप उसको ट्रैक कर रहे हैं कि कराची से लेके पेशावर तक किधर गई. कोरियर को आपने दिया, कोरियर से आप ट्रैक एंड ट्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन होती है. हर कंसाइनमेंट, हर पैकेज के साथ एक सेंसर लगता है और वो सेंसर मिनट बाय मिनट आपको गाड़ी के ट्रैकर की तरह इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कंसाइनमेंट कहाँ पहुंची, उसकी कंडीशन कैसी है. अगर आप 1 मिनट ये सोचें कि आप एक फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्टर हैं, तो यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेस्टिनेशन कंट्री में इंटैक्ट पहुंचे. तो आप वहाँ पे ये सेंसर्स लगा देते हैं जो कि आपको लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट दे रहा होता है कि टेम्परेचर जिस कंटेनर में जा रहा है वो इंटैक्ट है, क्या कंटेनर का टेम्परेचर खराब तो नहीं हुआ, उसका गुड्स पे इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा. सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हो सकती है. इसके अंदर पॉलिसी कंसिडरेशन क्या होगी कि आप अगेन
सिस्टम की हैकिंग तो नहीं हो सकती, कनेक्टिविटी रहे, इतने सारे सेंसर्स लग रहे हैं, हजारों सेंसर्स लगेंगे, ये एक स्टैंडर्डाइज सेंसर्स हों, ये ना हो कि कंपनी XYZ ने एक स्टैंडर्ड का सेंसर लगाया हुआ है, ABC ने किसी और स्टैंडर्ड का लगाया हुआ और आपस में वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। इसी तरह रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, 5G की टेक्नोलॉजी है। 5G की टेक्नोलॉजी पे यू मस्ट हैव हर्ड दिस ह्यूज international furor that has been created by the American government against China. Geopolitics के कंसर्न इसमें आ जाते हैं क्योंकि Huawei is a leading 5G टेक्नोलॉजी कंपनी और उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये स्पाइंग में, स्पाइनेज में इन्वॉल्व है। सो do you want to bring 5G in your country? If you are bringing in 5G into your country, what kind of implications going to have on your relations with other countries? How are you going to manage the associated risks with that? ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं। ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, कस्टम्स हो, सबके अंदर ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस हैं। बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि ब्लॉकचेन इंटरनेशनल लेवल पे इंटरऑपरेबल हो, विच मीन्स के डिफरेंट ब्लॉकचेन के सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। 3D प्रिंटिंग है, some of you might be knowing कि पाकिस्तान के अंदर 3D printing is actually not allowed. You need to have an NOC from the Ministry of Interior before you bring in a 3D printer. I'm not going to comment on the wisdom of that policy, but the world has moved on. और उसके अंदर एज पॉलिसी कंसिडरेशन आपको देखना पड़ता है कि अगर 3D प्रिंटिंग पाकिस्तान में हो रही है तो उसके ऊपर आपने टैक्सेस लेने नहीं लेने, उसकी रेवेन्यू इम्प्लीकेशन क्या होनी है, कस्टम्स वाले उसकी किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, ये सारे सवाल होते हैं जो कि एज अ गवर्नमेंट सेक्टर सोचने पड़ते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। ट्रेड टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, बट ट्रेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बैरियर्स भी बहुत ज्यादा हैं। It's high cost. It's not very easy to actually integrate technology. I was on a visit to South Korea and I had the opportunity to visit Samsung. Samsung में मैंने उनका प्रोडक्ट देखा है, उन्होंने फ्रिज बनाया हुआ है जो कि IoT टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है. So basically enables you to let you see inside the fridge even if you're out doing your grocery shopping. And आपको भूल गया कि घर में अंडे थे या नहीं थे, आपने अपनी ऐप खोली, फ्रिज के अंदर देखा, नजर आया कि अंडे पड़े या नहीं पड़े और आप अंडे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. बट दैट फ्रिज वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. उसको लेना एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए मुश्किल है, एंड इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज वो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है. उसको बनाने पे भी बहुत ज्यादा कॉस्ट है. इट्स नॉट द नॉर्मल लोकल फ्रिज दैट वी फाइंड इन द मार्केट्स हियर. सो टेक्नोलॉजी हैज इट्स कॉस्ट. टेक्नोलॉजी का कॉस्ट टेक्नोलॉजी बनाने का भी है, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ह्यूमन रिसोर्स का भी होता है. यू नीड द राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, द राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर टू बिल्ड दैट. कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं. हम ट्रेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. एज अ CEO ऑफ द पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी, आई ऑलवेज टॉक बिग. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, बट ब्लॉकचेन पाकिस्तान में मैं लाऊंगा तो उसको यूज कौन करेगा? क्या मेरी जो पार्टनर एजेंसीज हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो ब्लॉकचेन एनेबल्ड हैं? आंसर इज नो. लीगल फ्रेमवर्क क्या है? हम ये बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट रिड्यूस करना है. हम कह रहे हैं कि जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकली कुरियर के थ्रू नहीं आएंगी, वो हम इलेक्ट्रॉनिक रिसीव करेंगे और प्रोसेस करेंगे. बट क्या लीगल फ्रेमवर्क ये अलाउ करता है? क्या अगर कोई फ्रॉड होता है तो कोर्ट आपकी ऑनलाइन जो जनरेटेड डॉक्यूमेंट है उसको एविडेंस मानेगा, या वो आपको कहेगा कि पेपर फॉर्म लेके आए, इस पे स्टैम्प्स हों, अटेस्टेशंस हों? तो लीगल फ्रेमवर्क आपको डेवलप करना पड़ता है. ट्रेड टेक का ओवरऑल इकोसिस्टम क्या है? आपने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को बाकी लोग यूज़ भी कर रहे हो. उसका ओवरऑल इकोसिस्टम क्या है? अब मैं मिसाल के तौर पर ये बात करता हूँ कि मैंने चाइना से जो इम्पोर्ट की है उसको डिजिटल चैनल के थ्रू हैंडल करना है. वहाँ से बिल ऑफ लेडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इश्यू होगा, पाकिस्तान कस्टम्स को मिलेगा, इधर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे, डिजिटल पेमेंट्स होंगी, डिलीवरी हो जाएगी. बट इस पूरी चेन में अगर एक भी प्लेयर ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज नहीं करता या उसकी कैपेसिटी नहीं रखता, तो ये पूरा सिस्टम फ्लैट होकर गिर जाता है. बिकॉज यू हैव टू जनरेट अ डॉक्यूमेंट, and that just reduces the overall benefits of the system that you are trying to implement. So that's also a barrier to introducing trade technology. Fragmented markets. Some markets would have a high level of technology, other markets will not have that. ये वैसे नॉर्मल भी होता है. टेक्सटाइल को अगर आप मिसाल लें तो कुछ टेक्सटाइल के सेक्टर्स हैं जो कि हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक पुराने सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं. तो ये वहाँ के ऊपर भी ये फर्क आ जाता है. साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स व्हिच इज वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट सिक्योरिटी, दैट्स अ ह्यूज बैरियर.
आप क्लाउड पे शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि हैकिंग हो जाएगी। आप क्रॉस बॉर्डर डेटा जो है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं शेयर कर सकते क्योंकि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग आप में से स्टूडेंट्स हैं, आप आई एम श्योर कि स्ट्रगल करते होंगे। जब आप डेटा आपको चाहिए होगा तो आपको डेटा ऑनलाइन मिलता नहीं है, एंड यू रियली हैव टू स्ट्रगल टू गेट दैट डेटा। इन ट्रेड दैट इज स्पेशली सो। पाकिस्तान के अंदर ट्रेड डेटा आपको नजर नहीं आता। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में नजर आ जाएगा, स्टेट बैंक में आ जाएगा, एफबीआर की वेबसाइट पे आ जाएगा, बट मीनिंगफुल रिसर्च इसमें नहीं हो पाती। अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए हो तो आपको उनको अप्लाई करना पड़ता है, एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एंड फाइनली टेक्नो नेशनलिज्म, द सेम केस जो कि यूएस में हो रहा है, यू नो कि 5G अलाउ नहीं करना क्योंकि इट्स चाइनीज, या चाइना ये कहेगा कि हमने यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि उन्होंने हम पे बैरियर्स लगा दिए हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम इक्विपमेंट और वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नो नेशनलिज्म इज अ वेरी इमर्जिंग barrier to trade. We have about 10 minutes left, and I would like to quickly come back to the Pakistan single window, और किस तरह इंटरनेशनल जो लीगल फ्रेमवर्क है ट्रेड का, जो इंटरनेशनल लेवल पे गवर्न होता है, उसमें टेक्नोलॉजी को किस तरह इन्होंने कंसिडर किया है। So those of you who are not students of international trade would probably be interested to know about this international agreement called Trade Facilitation Agreement. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट्स के साथ साइन हुआ है। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इसके मेंबर्स हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का मकसद बेसिकली ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, और इसमें जो मुल्क साइन अप होते हैं उनकी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं कि हमने अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये कंप्लायंसेस कर देनी है। The idea is again to facilitate trade, make it more efficient, make it more inclusive, make it more equitable. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बड़ा ठीक ठाक कंपोनेंट है। 3 आर्टिकल्स हैं ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के जो कि टेक्नोलॉजी पे डील करते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 1 है कि इंफॉर्मेशन जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब मैं इस वक्त आप में से किसी से ये पूछूं कि आपको पता है कि मोबाइल कैसे इंपोर्ट करना है, आपको नहीं पता होगा। हम लोग ट्विटर पे अक्सर ये देखते रहते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जी मोबाइल पे टैक्स आ गया है, टैक्स क्यों आ गया है और टैक्स कैसे पे करना है। ये इन्फॉर्मेशन पूछने से नहीं आनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ योर माउस और योर फिंगर शुड बी अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन्स, एंड दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस जो कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट कहता है कि यू शुड हैव अ ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल और समथिंग लाइक दैट जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आर्टिकल 7 डील्स विद कस्टम्स, रिलीज एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स पे वो ये बात कर रहा है कि आप प्री अराइवल प्रोसेसिंग करें। प्री अराइवल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि गुड्स अभी आपके पास आए नहीं, आपने पहले प्रोसेस करके क्लियरेंस कर दी। टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट, आपको पहले से इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल मीन्स चाहिए, आएगी तो आप प्रोसेस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट चलाएंगे। पेमेंट्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। और आर्टिकल 10 जो कि मेरा फेवरेट आर्टिकल है क्योंकि दैट इज द रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान सिंगल विंडो बनी है, वो ये है कि आप एक सिंगल विंडो क्रिएट करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए प्रेफरेबली, जिसमें कि जितना भी ट्रेड का इकोसिस्टम है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, परमिट्स, कस्टम्स क्लियरेंस, जितनी रेगुलेशंस हैं वो सारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का आर्टिकल 10.4 है जो कि स्पेसिफिकली सिंगल विंडो के साथ डील करता है। व्हाट इज द सिंगल विंडो? It's a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point. बेसिकली आइडिया ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करना है, या आपने जर्मनी से ऑडी इंपोर्ट करनी है, मर्सिडीज इंपोर्ट करनी है, आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी इंपोर्ट से लेके उसकी पेमेंट्स तक, क्लियरेंस तक, फाइनल डिलीवरी तक सारी की सारी आप ऑनलाइन कर सकें, एट द स्पॉट कर सकें, और जो इन्फॉर्मेशन आपने एक दफ़ा दे दी है वो आपको बार बार देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, दिस इज़ अ विजुअल जो कि करंट सिस्टम है। जब सिंगल विंडो किसी मुल्क में इंप्लीमेंट नहीं होती तो दिस इज हाउ ट्रेड हैपेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ दैट कंट्री। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज, लॉट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि रेगुलेट करते हैं, सिर्फ कस्टम्स नहीं करता। यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को तकरीबन 32+ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रेगुलेट करते हैं, और एक्चुअली 74 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका किसी ना किसी तरीके से ट्रेड के ऊपर कोई इम्पैक्ट है। इस दौरान अगर कोई इंपोर्टर आ रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि वो मुख्तलिफ एंटिटीज को दे रहा है। इसमें पब्लिक सेक्टर भी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, पोर्ट्स हैं, ट्रेड रेगुलेटर्स हैं, कस्टम्स हैं, इन सबको उसने एक इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन बड़े ऑर्गेनिक तरीके से आगे पीछे मूव कर रही है। हर जगह पे डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक एवरेज ट्रेड ट्रांजैक्शन में तकरीबन हर ट्रांजैक्शन पे आपको 240 डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए होती हैं फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स।
सिंगल विंडो जब इम्प्लीमेंट होता है किसी मुल्क में, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। इन्फॉर्मेशन तो जानी है, क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी बेसिस पे डिसीजंस हो रहे हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन अब डिसऑर्गेनाइज नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज होके जा रही है। ट्रेडर को एक ही जगह पे इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन इंक्रीमेंटल बेसिस पे जमा करता रहेगा, और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास कि आपने जो जो डिसीजंस लेने हैं आप इसके ऊपर डिसीजंस ले लें। सिंगल विंडो का जो स्कोप होता है, चूंकि सिंगल विंडो एक ट्रेड टेक्नोलॉजी का टूल है, और इसलिए मैं इसको यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि जब हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर कुछ 10-11 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं इनफैक्ट। और इसमें से जो लास्ट स्टेप है नंबर 10, दैट इज अबाउट IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशंस एग्जीक्यूशन। जो बाकी 9 स्टेप्स हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अंदर बेसिकली आपका स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट है, बिजनेस केस क्या है, यूज केस क्या है, आपने कोई टेक्नोलॉजी लानी है तो उसकी जरूरत क्या है, अगर टेक्नोलॉजी लानी है तो उसका मिशन क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे लेकिन आपने डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट सेक्टर का रिस्क बढ़ा दिया उस ट्रांजेक्शन के अंदर। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इसलिए इंपोर्ट परमिट मांग रहा हो क्योंकि वो इंश्योर करना चाहता है कि आवाम को सब स्टैंडर्ड खुराक ना मिले, लेकिन आपने कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया, आपने प्रोसेस उसका काट दिया और आपने उसके कंसर्न को एड्रेस नहीं किया। सो यू नो देयर इज अ ह्यूज प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू before you actually start coming up with a IT based solution that you execute in the last part. If you look at this slide, on the left side you would see vision establishment और उसके नीचे लिखा हुआ है as is environment, right side पे लिखा हुआ है to be environment। यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, बट उसके अंदर आपको ये 8-9 स्टेप्स करने पड़े हैं जिससे पहले कि आप सिस्टम पे आए। And I'm going to move on. I'm not going to take a lot of time on this, but I would invite your attention towards the box marked number 3 and number 4, stakeholder collaborative platform establishment. किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में, स्पेशली फॉर अ प्रोजेक्ट एज बिग एज सिंगल विंडो, यू नीड टू मेक श्योर कि इसमें स्टेक होल्डर की कोलैबोरेशन हो। ऐसा ना हो कि कंसल्टेंट्स या टेकीज या जो आईटी के लोग हैं वो एक सोल्यूशन बना के इम्प्लीमेंट कर दें और उसकी ओनरशिप ही ना हो यूजर्स की तरफ से। सो ओनरशिप इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव फेल्ड इन क्रिएटिंग ओनरशिप फॉर अ प्रोडक्ट, you have actually failed in your project, because it might work in a short term but it would never work in the long term. And number 4 is business process analysis and simplification. This is important. जब आप डिजिटाइजेशन करते हैं पब्लिक सेक्टर के इदारों की, तो आपने ये देखना होता है कि आप उसके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में से किन किन चीज़ों को निकालेंगे, कौन सी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से प्रोसेस हैं जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जब आप कस्टम्स में जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले जाया करते थे तो कस्टम आपसे को कहता था कि एनटीएन का सर्टिफिकेट लेकर आए, अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लेकर आए, किरायानामा लेकर आए, साबित करें कि आपका कोई कारखाना है, आपका कोई ऑफिस है, इस तरह की चीज़ें। हमने कस्टम से पूछा कि ये क्या वैल्यू ऐड करता है आपकी प्रोसेस में। आप जब आईडी इशू करते हैं तो ये किरायानामा देके आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मुझे एक टेलीकॉम कंपनी के बंदे ने बताया कि 2.5 महीने उसको लगे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करने में ताकि वो कस्टम्स की रजिस्ट्रेशन कर सके। इस वक्त पाकिस्तान सिंगल विंडो उसी सिस्टम को रिप्लेस कर चुका है। आपको लगते हैं 5 मिनट, और अगर आपको बायोमेट्रिक करवाना है, नादरा के कियोस्क जाना है, तो उसका ड्राइव टाइम आप इसमें इंक्लूड कर दें। अदरवाइज आप एनटीएन नंबर डालें, सिस्टम ऑटोमेटिकली वैलिडेट करके आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, उसको वैलिडेट करके आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेजता है, आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन और आप सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो जाते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, डोंट नीड टू गो टू एनी कस्टम्स ऑफिस। सो दिस इज वेयर बिजनेस प्रोसेस analysis and simplification comes into play. You need to make sure that the system is simple. If you are automating the existing process, you are just basically translating the inefficiency of the manual process into the digital process. So I've written a lot of slides about the single window, but basically this is what single window is doing for regulatory reform, which is our original area of focus. सिंगल विंडो एटलीस्ट जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का स्फीयर है पाकिस्तान में, उसमें बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव एंड स्ट्रीमलाइन कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको अभी कस्टम्स रजिस्ट्रेशन की मिसाल दी, हमने सारे प्रोसेस एलिमिनेट करके 2.5 महीने का टाइम कम करके हम उसको लेकर आ गए हैं 15-20 मिनट पे। एज लॉन्ग एज यू हैव एन एनटीएन और अ वैलिड CNIC, यू आर गुड टू गेट रजिस्टर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। हमने स्टेट बैंक के साथ इंटीग्रेशन कर दी है और उसमें हमने उनकी बहुत सारी जो फाइनेंशियल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स थी उनको ऑटोमेट कर दिया है, आपको फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती।
डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स को हमने हार्मोनाइज कर दिया है, यानी जितने 30-32 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो सेम लैंग्वेज में मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा, आई डोंट नो व्हाट एग्जांपल टू गिव, बट कोई एंटिटी जो है वो मैनिफेस्ट मांग रही हो और दूसरी एंटिटी कार्गो बुक मांग रही हो, जो कि प्रैक्टिकली होता है। अब ये कि सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो स्टैंडर्डाइज है, तो एज एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर आपको पता है कि कार्गो बुक या मैनिफेस्ट किसको रेफर करता है, और वही सारे डिपार्टमेंट यूज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ कस्टम्स के अंदर नहीं आ गया, आप कोई भी परमिट्स, लाइसेंसेस, अदर डॉक्यूमेंट्स इशू करवा रहे हो, चाहे पीटीए हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी हो, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट चलेगी और उसकी बेसिस पे आप का डिसीजन सिस्टम करेगा। जॉइंट इंस्पेक्शंस हो रही हैं, यानी एक कंटेनर को अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने खोल के सैम्पलिंग करनी, इंस्पेक्शन करनी है, तो उनको परमिशन नहीं मिलती। एक ही दफ़ा कंटेनर खुलेगा, जिस जिसने देखना है आके देख ले। इससे ट्रेडर का कॉस्ट भी कम होता है और टाइम भी बचता है। करंटली सिचुएशन ये है कि कंटेनर बार बार खुलता है और हर दफ़ा खुलने के क्रेन के पैसे, उसको ग्राउंड करने के पैसे, लेबर लगाने के पैसे वो ट्रेडर को पे करने पड़ते हैं। जितनी कम्युनिकेशन है वो सारी बिजनेस टू गवर्नमेंट हो, G2G हो, G2B हो, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली होगी और हो रही है, जिसके लिए हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। EDI रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सी पोर्ट्स कनेक्टेड हैं कस्टम्स के साथ और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ, और सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज उसके थ्रू होता है। ई पेमेंट का सिस्टम है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल हमारा लॉन्च होने वाला है अगले महीने इंशाल्लाह, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने मोबाइल मंगवाना है तो कैसे मंगवाना है, कौन सी कंप्लाइंसेस करनी है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, किस किस गवर्नमेंट इदारे के पास जाना होगा, और अगर कोई फॉर्म्स चाहिए तो वो भी डाउनलोड हो सकेंगे। ये वो एक्टिविटी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पिछले 7 साल से करने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने इसको 11 महीने में कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम टेस्टिंग फेज में हैं, अगले महीने इसको हम लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और टाइम है, ये हमारा सारे का सारा रिड्यूस होगा। हमारा एस्टिमेट ये है कि जब सिंगल विंडो इम्प्लीमेंट होगी इंशाल्लाह, तो तकरीबन $350 मिलियन पर ईयर हम सेव करेंगे इंपोर्ट्स पे, और $80 मिलियन हम सेव करेंगे एक्सपोर्ट पे। ओवरऑल आप 450-500 मिलियन के आसपास का हमें कॉस्ट में बचत है, और टाइम का भी आपको नजर आ रहे हैं नंबर्स जो कि हम सेव करेंगे ओवरऑल। ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स क्या हैं यूजिंग सिंगल विंडो एज यू नो ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी? आप लोगों ने फिनटेक का नाम सुना होगा, रेगटेक, गवर्टेक, ये सारा कुछ सिंगल विंडो के अंदर कंबाइन हो रहा है। डिजिटल वॉलेट्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भी होंगी, इसके अंदर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी सारी की सारी रिफॉर्म होगी। गवर्टेक इसके अंदर सारा आ रहा है। बिग डेटा हम लाने की बात कर रहे हैं, हम सारे गवर्नमेंट अदारों को डेटा की विजिबिलिटी दे रहे हैं ताकि उसकी बेसिस पर अपनी इंफॉर्मेशन कर सकें। बैक एंड ऑटोमेशन हो रही है। इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑलरेडी हमारे पास इंटीग्रेट हो गया है। एज अ केस इन पॉइंट, अगर आप में से जो लोग कराची के हों शायद जानते होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का ऑफिस मलीर हॉल्ट पे है, जो कि सी पोर्ट से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। करंट सिस्टम ये है कि हर कंसाइनमेंट जो कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की आती है, उसमें क्लियरिंग एजेंट या ट्रेडर जो है वो उस ऑफिस तक जाता है, वहां से ठप्पा लगा के वापस पोर्ट पे जाता है। तो दिन में अगर उसको 2 चक्कर भी लगाने पड़े कराची की ट्रैफिक में शराय फैसल पे, तो उसका दिन निकल जाता है एक कंसाइनमेंट के ऊपर ही। हमने पूरे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के ट्रेड रिलेटेड प्रोसेस को ऑटोमेट करके इस झंझट को ही खत्म कर दिया है। डेटा हार्मोनाइजेशन हो रही है, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, सारे डिपार्टमेंट्स सेम तरीके से काम करेंगे, सेम इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो ट्रेडर को पता होगा कि मैंने किस तरीके से प्रोसेस लेके आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि कस्टम्स में कोई और प्रोसेस चल रहा है, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में कोई और प्रोसेस चल रहा है। रिसेंटली वी इंटीग्रेटेड विद IBM एंड मर्स्क। उनका एक ट्रेड लेंस के नाम से प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर शिपिंग की इंफॉर्मेशन सारी हमें ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगी। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव टू काउंटर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, टू काउंटर फ्रॉड्स, फिजिकल फ्रॉड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स पे हम काम कर रहे हैं। वी आर एस्टैब्लिशिंग अ डेटा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस विद इन दी पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी, जिनका सोल पर्पस ही ये है कि जो डेटा सिस्टम्स के अंदर आ रहा है, चाहे वो शिपिंग का हो, बैंकिंग का हो, कस्टम्स का हो, ट्रेड का हो, उसको डिफरेंट तरीकों से काम करके आप लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको भी दे, एकेडमिक्स को, रिसर्चर्स को भी दे, और गवर्नमेंट एंटिटीज को भी दे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, दीज आर प्रोबब्ली द लास्ट 1 or 2 स्लाइड्स। किस तरीके से कोई प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है जब आप रिफॉर्म लाने की बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? एक तो देयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल ओनरशिप हो टॉप लेवल पे। अगर ओनरशिप नहीं है, डोनर ड्रिवन एजेंडा है,
या किसी बंदे ने खुद ही एक चीज कंसीव कर लिया और उस पर ओनरशिप क्रिएट नहीं की, तो देयर वुड नॉट बी huge success of that project or that program. Taking single window Pakistan as an example, this project started under the previous government. It has enjoyed continued political ownership despite the change of several finance ministers. और अभी भी 100% सपोर्ट हमें रही है. सिंगल विंडो का जो एक्ट पास हुआ है वो कंसेंसस के साथ हुआ है. दोनों साइड्स ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस ने मिलकर किया है. सो देयर वाज नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट. वेरी इंक्लूसिव अप्रोच. आपने कोई भी रिफॉर्म करनी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करनी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करनी, यू हैव टू बी वेरी इंक्लूसिव, व्हिच मींस यू नीड टू रीच आउट टू एवरी स्टेक होल्डर. द थिंग दैट आई नॉर्मली डू इज, जब मैंने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना होता है तो आई क्रिएट अ स्टेक होल्डर मैप कि इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन है. और स्टेक होल्डर्स सिर्फ इसके यूजर्स नहीं होते, एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी. मैं जो सिंगल विंडो का सीईओ हूं तो मेरे स्टेक होल्डर्स में मेरे इंटरनल एम्प्लॉइज भी हैं, कस्टम्स के लोग भी हैं. किस किस पे इम्पैक्ट आना है, ये रिफॉर्म जो हम लाना चाह रहे हैं इसमें किन किन लोगों को हमने टच करना है, उनको कन्विंस करना है, उनमें ओनरशिप क्रिएट करनी है. फिर इंस्टीट्यूशलाइजेशन मैटर करती है. रिफॉर्म्स किसी भी तरीके से हवा में नहीं खड़ी हो सकती. I'm not going to name any names, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पे इनॉग्रेशंस हो रही हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, एप्स डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बड़ी बात हो रही है. बट व्हेन यू गो एट द बैक यू सी दैट देयर इज नो रियल रिफॉर्म. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं, सेक्रेटरी साहब चेंज हो जाते हैं, मिनिस्टर साहब चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो इनिशिएटिव खत्म हो जाता है. नोबडी टेक्स इट ऑन क्योंकि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया. सिंगल विंडो की एग्जांपल देते हुए हम लोगों ने 3.5 साल सिर्फ इस पे काम किया कि हम इसका एक्ट क्रिएट करें, सिंगल विंडो कंपनी क्रिएट करें, एक गवर्निंग काउंसिल क्रिएट करें जो कि सिंगल विंडो सिस्टम को सुपरवाइज करे. उसके बाद हमने एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू की है. एक्चुअल डेवलपमेंट हमारी पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई, जबकि प्रोजेक्ट 2017 में पाकिस्तान कस्टम्स ने लॉन्च किया था. फिर ये कि इंफॉर्मेशन फ्लो आपने स्ट्रीमलाइन करना है, बिजनेस प्रोसेसेस की आपको री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, उसकी मैपिंग की ज़रूरत है. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बहुत से कंपनीज, बहुत से रिफॉर्मर्स, बहुत सारी एंटिटीज ये नहीं करती और डायरेक्ट रिफॉर्म की तरफ चले जाते हैं. वैल्यू फॉर मनी और एफर्ट नज़र आना चाहिए. हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि जब हम कोई रिफॉर्म लेकर आते हैं तो हम उसका ओनरशिप जिस डिपार्टमेंट के साथ ला रहे हैं उसको देते हैं, उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कहते हैं प्रोजेक्शन लें. हम अभी शाम को नहीं आ रहे सर, हम इंशाल्लाह सुबह आएंगे. अच्छा, सॉरी. तो दैट इज वेयर यू दे गेट दी वैल्यू फॉर मनी. बेसिकली आपने उनको दिखाना है कि आप जो रिफॉर्म कर रहे हो, जो सिस्टम लेके आ रहे हो, तो उसमें उनको भी फायदा हो रहा है. अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स को ये फायदा नहीं दिखाएंगे तो दे वुड नॉट गेट ऑन बोर्ड. एंड देन देयर इज इंक्रीमेंटल अप्रोच. यू डोंट गो फॉर अ बिग बैंग, यू ऑलवेज गो फॉर स्मॉल चेंजेस. सो इन अ ट्विटर एक्सचेंज अ फ्यू डेज अगो आई एक्चुअली मेंशन दिस कि मैं एवोल्यूशनरी हूँ, रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ. आई डोंट बिलीव इन बिग बैंग चेंजेस. मुझे लगता है कि जब आप किसी सिस्टम को टोटल रिप्लेस करने की बात करते हैं तो दैट डजंट वर्क. इट्स बेटर टू वर्क इन द सिस्टम, मेक changes that really count. But of course, there are always challenges in public sector reform. Implementation is difficult. People change. You don't find enough change champions. Naveed Saab might get the Deputy Commissioner Islamabad to work with him on introducing pedestrian-friendly policies in Islamabad. But the day Deputy Commissioner Saab changes, you would see the enthusiasm going out of the window. So implementation is difficult. You have to work with those challenges. कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, लोगों को समझ नहीं आती. आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आप बात करते हैं रिफॉर्म्स की, पीपल वोंट अंडरस्टैंड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वुड रेजिस्ट चेंज. पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देयर जॉब्स, पीपल आर इनसिक्योर अबाउट, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर टर्फ्स. ये सारा होता है. स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. आई एज ए सीईओ आई एम ऑलमोस्ट ऑन द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ अ फेडरल सेक्रेटरी, क्योंकि मैं रिपोर्ट ही किसी को नहीं करता, सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या प्रॉब्ली फाइनेंस मिनिस्टर को. बट इवन आई हैव दिस चैलेंज कि जब मैं किसी फेडरल सेक्रेटरी से टाइम लेता हूं तो आई हैव टू वेट फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स. एंड देन अनलेस आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म जहां पे वो फोर्स हों कि वो आके मेरे साथ बात करें, आई गेट फाइंड इट चैलेंजिंग टू गेट रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड. सो इमेजिन व्हाट हैपेंस व्हेन द काउंटरपार्ट इज अ प्राइवेट सेक्टर पर्सन. इनकंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसकी वजह से बार बार आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं. जब आप पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं, आप एक बिजनेस मॉडल बना के लाते हैं और पता चलता है वहाँ तो एनवायरमेंट ही चेंज हो गई, पॉलिसी चेंज हो गई, और फिर आपको शुरू से सारा काम करना पड़ता है. और फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सस्टेनेबल गवर्नेंस एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स नहीं होते. मिनिस्ट्रीज कंप्यूटराइजेशन कर देती हैं, लोग नहीं हैं सिस्टम्स को चलाने के लिए. सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट स्लाइड.
and probably that is the key takeaway, ke digital transformation, while we talk about technology and while we talk about different innovations, it's just not about technology. You need the right mindset. If people in the organization lack the right mindset, you can't introduce technology. You need to make sure कि आपको organization और उनके employees की needs को आप recognize कर रहे हो. टेक्नोलॉजी का मकसद ये नहीं है कि आपने लोगों को फेंक देना है और वहां पे रोबोट्स लेके आ जाने हैं. एक्चुअली यू नीड टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दी पर्सपेक्टिव. क्यों कोई गवर्नमेंट ने किसी मिनिस्ट्री ने रेगुलेशंस लगाए हुए हैं? बिकॉज देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क दैट दे आर ट्राइंग टू कवर. क्यों आपसे फॉर्म्स मांग रहे हैं? बिकॉज देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे नीड. उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एड्रेस करें. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी अगर आपने करंट बिजनेस प्रोसेसेस को इनकॉर्पोरेट किया और उनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका पूरा सिस्टम भी प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा. अगर आपका एंड प्रोडक्ट यूजर नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, इट वोंट वर्क. और अगर आपके पास, एंड आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, सस्टेनेबल गवर्नेंस एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म नहीं है, आपको ये नहीं, आपने एक वेबसाइट ई कॉमर्स की तो बना दी लेकिन आपने ये नहीं इंश्योर किया कि उसका कंटेंट अपडेटेड होता रहे, उस पर जो लोग हिट्स कर रहे हैं उनको फीडबैक मिलता रहे, उनके फीडबैक को कोई सिस्टम इनकॉर्पोरेट करता रहे, तो योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट वर्क. Digital transformation will magnify the flaws in the system, resulting in a failed effort. So that's the last point. I don't know how much sense it made because it was a lot of information, but basically this is what I wanted to talk to you about. I'm open to questions and answers. Thank you so much, sir. It was such an insightful session. I highly appreciate the work you do. People like you are the one who are engaging us to do good for Pakistan and be proud of ourselves to be a citizen and work more better for the future of Pakistan. Thank you so much. Fayaz, have a question, but our other speakers also joined us and we're already above the time. If Fayaz, you can ask the question in the chat and sir can reply through that if it's possible. मेरा 2 क्वेश्चन उससे फुरकान साहब को हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर इनको जिम्मत देते हैं, इंतजार कर लेंगे. ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंतजार करते होंगे तो आज ये भी कर लें. बस बहुत शुक्रिया. 2-3 क्वेश्चंस ले लें ताकि लोगों को अगर अंडरस्टैंडिंग में इशू हो तो बस फुरकान साहब से स्टार्ट करते हैं, तो वी कैन एक्सटेंड इट टिल 8:30 आई थिंक. फुरकान साहब, Fayaz, please ask without any delay, please ask the question. अच्छा, मुझे एक दो multi-pronged question. The first part is के it's as simple as the fact कि हम जो टमाटर लेते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट में, उसका जो रेट है वो भी पाकिस्तान कस्टम्स की वजह से इम्पैक्ट होता है बिकॉज देयर आर फोटो सैनिटरी और सैनिटरी फैसिलिटीज अवेलेबल और ईरान के साथ ना अफगानिस्तान के साथ. तो ये बहुत बड़ा मसला रहा है हमेशा पाकिस्तान कस्टम्स से मुतालिक कि हमारे पास वो नहीं है फैसिलिटीज. दूसरा मुझे ये कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है इस वक्त. अभी एक पीआरएल अथॉरिटी है वो डेटा देती है, फिर पाकिस्तान कस्टम से डेटा आता है, फिर बोर्ड ऑफ अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब डेटा देते हैं, फिर पीबीएस से डेटा आता है, फिर उसके बाद स्टेट बैंक से डेटा आता है. ये 5 नंबर आते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से. कंफ्यूजन आपकी नजर में? थैंक यू. Yes, I think this is a very interesting question. और ये एक बड़ा इत्तेफाक है कि ये पीबीएस और एफपीआर और प्राल के डेटा की बात जो है ना आज दिन में तीसरी दफा हो रही है इनफैक्ट, क्योंकि कल से हम लोग भी इस इशू को एड्रेस कर रहे थे. रज़ाक दाऊद साहब ने एक ट्वीट की और अगले दिन पता चला कि उनकी ट्वीट की में जो इंपोर्ट की फिगर थी वो मैच नहीं करी थी जो कि ऑफिशियल फिगर्स थी और उसमें रिकंसिलेशन का इशू था. बट लेट मी आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट. जो टमाटर की कीमत महंगी होती है वो कस्टम्स की वजह से नहीं होती, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंपोज करती है. पहले एफबीआर करता था, अब वो काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दिया गया है और कस्टम टमाटर के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं है. इनफैक्ट जहां तक मुझे याद पड़ता है, मुझे वैसे 5 साल हो गए कस्टम्स छोड़े हुए इन्हीं काम करते हुए, तो उस वक्त उस पर सिर्फ इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स था, वो भी बहुत नॉमिनल था. एज अ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फूड आइटम्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाती. बट हैविंग सेड दैट, ये फाइटोसैनिटरी के हमारे प्रॉब्लम्स हैं. हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है हम रियलाइज नहीं कर पाते. उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाएं और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाकी मुल्क एक्सेप्ट कर सकें. सो दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. रिलेट्स मोर टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, सो आई विल जस्ट लिमिट माय रिस्पॉन्स टू दिस ओनली. बट ऑन द डेटा पार्ट,
दैट्स अ वेरी रियल चैलेंज। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि 4-5 डेटा सेट्स हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन कर रही हैं और उनके दरमियान स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, पैरामीटर्स एक जैसे नहीं है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बात की थी कि आपको हार्मोनाइजेशन की जरूरत होती है, स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है डेटा में और सिस्टम्स के। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा आपको रिपोर्ट कर रहा है वो लेता कस्टम से है, लेकिन वो उसका जो ड्यूटी काउंट करने का टाइम होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो टाइम नहीं है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो रिपोर्ट करता है वो रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे करता है, या जिस वक्त फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली बाहर जाता है उस पर करता है। कस्टम जो डेटा आपको रिपोर्ट करता है वो लेता है उस टाइम पे जब कंसाइनमेंट पोर्ट को छोड़ के बाहर जाती है, या जिस वक्त के ड्यूटीज एंड टैक्सेस गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होते हैं। सो यू सी देयर आर 5 or 6 different definitions. As part of the single window initiative, what we are going to do, this is something that we discussed yesterday and even today. We're going to reach out to different government organizations who are maintaining this data, because at the end of the day, customs का data भी PSW के थ्रू ही जाएगा और हम उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। PBS में आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब वो डेटा डाउनलोड करते हैं तो जो राउंडिंग ऑफ करते हैं उसमें और FBR के राउंडिंग ऑफ के पैरामीटर्स में फर्क है, और उससे एकदम ही मिलियंस का फर्क पड़ जाता है किसी भी एक HS कोड के अगेंस्ट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जी स्टैंडर्डाइज करें, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म करें, डिजिटली डेटा को डाउनलोड करें और सेम पैरामीटर्स सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करें। आई कांट गिव यू टाइमलाइन फॉर दैट राइट नाउ, बट दैट इज definitely something on our agenda. We hope that within a year or 2 we would be giving a consistent product from the single window platform. I have just one more thing to ask, since you are a person who can influence the decision making. Data जो आता है, it usually comes in dollars. There is no trade value. There is no quantity of 99.9% of the items. Even State Bank in its monetary policy review shares data on the limited number of items के जो import होते हैं, total नहीं है, electronic machinery का नहीं है, तो analysis becomes incredibly tricky when you're trying to do that. उसके ऊपर PBS का डेटा सिर्फ PDF में आता है, do not even share it in Excel, which in itself is a big problem. So like it's in 1999 में रह रहे हैं हम। ये 100% सही बात है, और अभी हम इंशाल्लाह जिस ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल की मैंने बात की कि हम February-March में लॉन्च करेंगे, उसमें हम एक और रिफॉर्म जो करने जा रहे हैं जिसपे मुझे थोड़ा सा कस्टम्स और FBR के साथ सींग लड़ाने पड़े, वो ये था कि जितना भी ट्रेड डेटा है उसको हम ओपन सोर्स कर दें, पब्लिश कर दें एकेडमिक्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो कि इंटरनेशनल पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे काम करते हैं। तो उसमें आपको PDF फॉर्मेट नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। फिलहाल तो सिंपल BI टूल्स में आपको विजुअलाइजेशंस और डाउनलोडेबल डेटा मिल रहा होगा, बट एज वी मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ परमानेंट एंटिटी, तो इसके अंदर बार बार इंप्रूवमेंट्स और आइटरेशंस आनी है। और हम जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि विद इन सिंगल विंडो कंपनी वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए जो ये इंश्योर करे कि जितने भी हमारे वेब पोर्टल्स हैं, जितने भी पब्लिक इंटरफेसेस के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे अपडेटेड रहें। तो इंशाल्लाह आपका ये वाला गिला पार्टली जो है ना February-March में एड्रेस हो जाएगा और आपको डेटा नजर आना शुरू हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, HS कोड वाइज, विद क्वांटिटीज, विद वैल्यूज। हाँ, उसमें हम आपको सप्लायर इन्फॉर्मेशन और बायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। I guess Fayaz के सारे सवाल अगर complete हो गए हैं, so if you have any other question or let's move to another session. ये जस्ट मेरे फेलोज के लिए जो है ना, ये टीम के लिए क्वेश्चन है आफ्ताब साहब से। अगर इनमें से कोई जो है वो आपके साथ कुछ इंटर्नशिप करना चाहे, आपके डिजिटलाइजेशन, आपके जर्नी से मुतासर हो के कोई एक और आफ्ताब हैदर 2 बनना चाहे, तो हाउ कैन यू फैसिलिटेट? आप मुझे डराते रहते हैं नवीद साहब, मैं इतना कोई आफ्ताब हैदर 2 मैं लोगों को नहीं कहूंगा कि ये बने, बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है यू नो, एंड दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस बिजनेस। बट yes, definitely हमारे पास इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। we have 2 offices, one in Islamabad, one in Karachi. Karachi is where the actual development takes place, it's the hub of activity, सारा काम हमारा वहाँ पे हो रहा है। इस्लामाबाद में हमारा जो है वो सपोर्ट स्टाफ है, प्रोक्योरमेंट, HR, फाइनेंस। I sit here because I have to interact with the government departments. So हम इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, नॉट फ्री वाला इंटर्नशिप, हम वो भी ऑफर करते हैं। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को लाएंगे, ट्रेन करेंगे, एंड वी वुड लाइक देम टू बी पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके तवसत से जो भी आपके फेलोज इंटरेस्टेड हों कराची के ऑफिस में या इस्लामाबाद के ऑफिस में, लेट मी नो एंड आई विल मेक श्योर के दे गेट अ प्लेस इन देयर। आई वुड सजेस्ट कराची इज अ बेटर प्लेस टू वर्क एट, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअल एक्सपोजर नजर आएगा ट्रेड का, शिपिंग का, कस्टम्स का, और जो काम हम कर रहे हैं। थैंक यू आफ्ताब साहब। You are most welcome.
Thank you so much, sir. Once again, it was lovely having you. We wish you good luck for your company and looking forward for other LRP sessions and coming forward. Thank you very much. I would love to be there, but you know, I have an observation. When there are no questions, it's either that I've done a very good job and people understand, or I've done a very poor job और लोगों को समझ ही नहीं आई. तो I'll leave it to you कि आप और नवीद साहब ये देख लें कि सेशन का कितना लोगों को समझ आया नहीं आया. But having said that, you have my number. I'm going to share my email address on that. तो अगर कोई subsequent questions हैं, people want more information, I would also welcome you all at the PSW offices in Islamabad, even in Karachi. अगर आप हमें visit करना चाहते हैं, want to have a thorough briefing on what single window has achieved so far, क्योंकि मैंने वो चीजें आपको नहीं दिखाई, I would be more than happy to host you. जी थैंक यू आफ्ताब साहब. मेरा ख्याल है वो टाइम तो सबकी इंटरेस्ट होगी, वो जस्ट चूंकि उन्होंने वो नेक्स्ट स्पीकर की वजह से वो नहीं क्वेश्चंस कर रहे. सो इफ यू कैन शेयर योर ईमेल आईडी, दे विल सेंड इट डायरेक्टली टू क्वेश्चंस जो भी इनके होंगे, देन दे विल रेफर टू यू. बिल्कुल ठीक है, मैं हिरा आपको अभी भिजवा देता हूँ. ठीक है, Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. आप फाटा का सेशन सुनना चाहें तो यू कैन स्टे विद अस, योर चॉइस. मुझे बीवी घर से निकाल देगी नवीद, अभी तो मैं घर पहुंचूंगा तो 8 बजे होंगे.